Okay, so in electromagnetic induction, first term, before explaining Faraday's law, first term, magnetic flux. Magnetic flux, it is represented by phi. So magnetic flux, the number of lines, number of magnetic lines passing through unit area. एक unit area में कितनी magnetic lines pass कर रही हैं? That is number of magnetic lines of forces passing through unit area. Number of magnetic lines of forces passing through unit area. एक unit area में कितनी magnetic lines जाती हैं? Similar to electric flux. Electric flux is what? Number of electric lines of forces passing through unit area. Magnetic flux is number of magnetic lines of forces passing through unit area. अगर हम एक unit area लेते हैं उसमें कितनी magnetic lines जाती हैं? Suppose यहाँ पे मैंने दो cases दिया. In the first case only few lines are passing. In the second more number of lines are passing. More number of magnetic lines are passing. So this is what the number of lines, the total lines passing through this loop या जो हमारा एक loop है उसमें कितनी lines जा रही हैं, that is what the magnetic flux is. So in the first case flux low है because यहाँ पे only few lines are passing through this first loop, but in the second loop more and more number of lines are passing. So it is represented by phi, so here it is phi 1 and here it is phi 2. So phi 2 is greater than phi 1, more number of lines are passing through the second coil. इसका मतलब second के cross जो flux है वो ज़्यादा है, first के cross flux कम है. So flux is nothing but the number of magnetic lines of forces. The number of magnetic lines of forces passing through a loop, unit area या a loop. अब in which quantities, in which factors it depends. Flux depend किस पे करता है? तो first तो it depends on electric field, magnetic field, because these are magnetic lines of forces. Magnetic field. It depends on the magnetic field. अगर सपोज करो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैंने एरिया को, मैंने तीन लूप लिया यहाँ पे, एरिया की वैल्यू मैंने कांस्टेंट रखा, बट आई एम जस्ट चेंजिंग द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. यहाँ पे और ज्यादा मैंने बढ़ा दिया. When strength of magnetic field increases, magnetic flux also increases. In the first case, only few magnetic lines are passing. In the second case, because when magnetic intensity increases, that B1, B2 and B3. When magnetic field strength, third loop के cross, I am not changing the area constant है, हम variation किसमें कर रहे हैं? Magnetic field में. So in the first loop magnetic field is what? B1. Across the second loop magnetic field is B2 and across the third loop magnetic field is B3. Magnetic intensity में magnetic field strength बढ़ा रहा हूँ तो जो flux है वो भी increase करेगा. तो सबसे ज़्यादा flux phi 3 में है. Phi 3, here phi 2 and here it is phi 1. तो phi 3 is greater than phi 2 is greater than phi 1. So it means when magnetic field strength increases, flux across that loop also increases. So flux depends on the magnetic field strength. First, second, area. Now in case if suppose magnetic field is uniform, हम एक uniform magnetic field रखते हैं. Magnetic field को मैं change ही नहीं कर रहा हूँ, but I am changing the area of the loop. पहले के मैंने छोटा सा एरिया लिया, फिर और बड़ा किया और लास्ट में और increase कर दिया. So in this case I am not changing the magnetic field, I am changing the area. So that flux depends on the area also. जैसे हम एरिया इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म था थ्रू आउट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म है, बट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द एरिया, यहाँ से मैंने एरिया को इंक्रीज किया, सो व्हेन एरिया इंक्रीजेस more and more it is going to cover more magnetic flux या more magnetic flux passes through that area. तो जितना एरिया हम इंक्रीज करते हैं फ्लक्स उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाता है. फर्स्ट केस में एरिया थोड़ा सा है, छोटा सा एरिया तो एक ही लाइन जा रही है, सेकंड केस में एरिया थोड़ा ज्यादा हो गया तो 3-4 लाइंस पास करें, यहाँ पे और एरिया. तो व्हेन एरिया इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम लूप का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, वी आर चेंजिंग द एरिया. सो व्हेन एरिया ऑफ द लूप इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस. सो हियर आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है? एरिया पे. यहाँ पे हमारा phi 3, phi 2 and phi 1. It depends on area. So magnetic flux first it depends on the magnetic field strength, second it depends on area. Third quantity, if you are rotating this loop, इस coil को हम अगर rotate करते हैं, in that case also जो magnetic flux है वो it is going to change because of that angle of rotation. So third factor it depends on the angle. Third is angle theta. या इसको हम omega t भी बोल सकते हैं. So when we are changing the angle, अगर हम angle को change करते हैं, suppose मैंने uniform magnetic field लिया,
फर्स्ट केस में लूप ऐसा है, सेकंड केस में लूप इस टाइप से, और थर्ड केस में लूप इज लाइक दिस। थ्री केस दैट। मैंने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रखा, थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है, एरिया की वैल्यू भी सेम रखा, जो लूप का एरिया है मैं उस लूप के एरिया को भी चेंज नहीं कर रहा हूं, बट व्हाट आई एम चेंजिंग इज इट्स एंगल। पहले केस में इन द फर्स्ट केस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उस लूप के फेस का डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड और एरिया बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सेकंड केस में मैग्नेटिक लाइंस आर लाइक दिस एंड एरिया इज मैचिंग, एरिया हमेशा क्या होता है उसके फेस के डायरेक्शन में, बी एंड area. In this case, in the third case, magnetic lines are like this and area is in this direction. So in the third case, area is perpendicular to magnetic field. जो area का direction क्या होता है? Face का direction. So in the third case, area is perpendicular to magnetic field. Here it is making 90 degree. So when it is making 90 degree, no magnetic lines are passing through that loop. उस loop के अंदर से कोई magnetic lines जा ही नहीं रही, उसके just ऊपर से जा रही, नीचे जा रही, but उसके अंदर से cross नहीं कर रही. जब ये lines cross नहीं करेंगे तो हम नहीं बोलेंगे कि वो flux है. So in the first case, when it is making 0 degree, when angle between magnetic field and area, magnetic lines right side में, इसका face भी right side में, here it is making 0 degree. In the second case, मैंने उसको थोड़ा सा turn किया है, तो it is making some angle which is greater than 0, 0 से angle बढ़ रहा है, और यहाँ पे इस third case में एकदम से 90 degree हो गया है, the angle between magnetic field and area, here it is 90 degree. Clear? So when you are changing, increasing the angle, flux decreases. तो यहाँ पे theta क्या है? 0 है in the first case, so flux is maximum. And in the last case, theta is equal to 90. तो जो फ्लक्स है वो क्या हो गया है? 0. तो it depends on the angle of rotation. कितने एंगल से हम उसको रोटेट किए हुए हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है. तो ओवरऑल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. फर्स्ट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड्स ऑन एंगल एंड इट डिपेंड्स ऑन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी. देखो जब ये 0 था, जब एंगल 0 था तो फ्लक्स मैक्सिमम, जब ये एंगल 90 हो गया तो उस टाइम पे फ्लक्स क्या हो गया? 0. तो जो फॉर्मूला होता है फाई का, दैट इज बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. ये डॉट प्रोडक्ट है बिकॉज इसका जो रिजल्ट है फाई इज जस्ट अ नंबर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बी डॉट ए, या यू कैन से बी ए कॉस ओमेगा टी, हमारा फ्लक्स का एक्सप्रेशन है. Magnetic flux is equal to B A cos omega t, where B is magnetic field, A is area, omega t is the angle. B is magnetic field, ये हमारा area of loop and omega t, angle between magnetic field and area, angle between magnetic field and area. So overall जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड द एंगल, कितना एंगल पे वो इंक्लाइंड है या कितना उसका एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. तो ये हमारा है अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ, बिकॉज इसको हम यूज करने वाले हैं फैराडेज लॉ में, फैराडेज एक्सपेरिमेंट में. सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर हम किसी लूप के क्रॉस, इफ यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ लूप, अभी मैं फैराडेज लॉ से स्टार्ट करता हूं ये चैप्टर में. मैग्नेटिक फ्लक्स वी आर गोइंग टू यूज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट, इसलिए हमने यहां पे एक्सप्लेन किया. ओके, सो फैराडेज एक्सपेरिमेंट. ओके, यहाँ पे फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, सपोज हम यहाँ पे एक लूप लेते हैं और इस लूप में एक बल्ब कनेक्ट कर दिया. दिस इज व्हाट अ बल्ब इज, एंड देयर इज अ मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये मैग्नेट इस लूप के पास में रखा हुआ है, बट इट इज स्टेशनरी, वो रेस्ट में है. तो इफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड क्लोजर टू दिस लूप, इट इज गोइंग टू जनरेट मैग्नेटिक लाइंस अराउंड इट. दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, वो मैग्नेटिक लाइन जनरेट करेगा. सो थोड़ी लाइंस इस लूप के क्रॉस जा रही, सपोज यहाँ पे 4 लाइंस पास करेंगे, इट मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस दिस लूप. देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस लूप. बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेट, इस कॉइल के पास, इस लूप के पास ये मैग्नेट प्रेजेंट है. सो बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेट, देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस लूप. यहाँ पे फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब फ्लक्स तो है यहाँ पे, बट इफ दिस मैग्नेट इज स्टेशनरी, वो जो फ्लक्स है उसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है. अगर यहाँ पे 4 लाइंस हैं तो थोड़े टाइम बाद भी अगर बल्ब यहीं पे कनेक्टेड है, मैग्नेट वहीं पे है स्टेशनरी, तो मैग्नेट इज नॉट मूविंग.
सो फ्लक्स तो है उस कॉइल के क्रॉस, बट दैट फ्लक्स इज कांस्टेंट, वो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही बिकॉज दिस मैग्नेट इज स्टेशनरी. सो व्हाटएवर मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस लूप, दीस लाइंस आर कांस्टेंट. यहाँ पे 4 लाइंस है तो यहाँ पे भी 4 लाइंस है. फ्लक्स है बट उस फ्लक्स में वेरिएशन नहीं है, दैट फ्लक्स इज कांस्टेंट, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता यहाँ पे बिकॉज दिस मैग्नेट इज नॉट मूविंग. तो नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस स्टेशनरी मैग्नेट. वो मैग्नेट रेस्ट में, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है, तो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी यहाँ पे, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. फर्स्ट केस मैंने लिया, यहाँ पे मैंने मैग्नेट को रखा, इधर एक कॉइल रखा, कॉइल से एक बल्ब कनेक्टेड है, बट ये मैग्नेट स्टेशनरी है, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस तो जा रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, बट वो फ्लक्स में वेरिएशन नहीं है. तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता. जैसे एक चार्ज होता है ना, तो चार्ज क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिसिटी. जब वो चार्ज मूव करता है देन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड. क्लियर? तो वो चार्ज को मूव करना पड़ता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू मूव, देन ओनली दैट चार्ज गेट्स मैग्नेटाइज्ड. इन द सिमिलर वे में ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रहा है. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता. यहाँ पे फ्लक्स अगर है, कांस्टेंट फ्लक्स है इन दोनों केसेस, बिकॉज दिस मैग्नेट इज स्टेशनरी, तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ फर्स्ट केस में. सेकंड केस, इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस मैग्नेट क्लोजर टू द लूप, अब मैं मैग्नेट को लूप के पास ले जाता हूँ, बल्ब कनेक्टेड है, ये मैग्नेट यहाँ पे है, नॉर्थ साउथ लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस way. This magnet is moving towards the loop. ये मैग्नेट लूप की तरफ जा रहा है, मतलब we are trying to increase the flux. When you are bringing this magnet closer to the loop, अगर आप उसको लूप के पास ले जाएंगे, so flux increase. So we are trying to increase the flux. This is the bulb. When this magnet brought closer to the coil, so when it is closer, यहाँ पे flux increase करेगा, more and more number of magnetic lines are passing through this loop. Clear? Because we are bringing this magnet closer to the loop. जब ये लूप के पास आएगा तो फ्लक्स इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है. सो इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी आर ब्रिंगिंग दिस मैग्नेट, सो फ्लक्स इंक्रीजेस, फ्लक्स इंक्रीजेस, सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट था, यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू 0 थी, तो ईएमएफ भी क्या था? 0. यहाँ पे डेल्टा फाई इंक्रीज, यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, here flux is increasing, that's why EMF is induced. So in the second case, when we are bringing this magnet, अगर इस मैग्नेट को पास में ले आएंगे, जैसे से पास में आएगा, number of lines, the number of lines which are passing through this coil, या number of lines which are passing through this loop increases. Number of lines increase करे मतलब flux increase करा. So when flux increases and EMF is induced, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है. EMF, जो EMF हमारा फुल फॉर्म होता है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज इलेक्ट्रिक वोल्टेज. ये एक वोल्टेज है. So because of that increase in flux, when you are bringing this magnet closer to the coil, flux increases. When flux increases, EMF is induced. That is what the Faraday's law. Whenever we are trying to change the flux, and EMF is induced. Yeah, whenever there is a change in flux across a loop, एक loop के cross if there is a change in flux, कैसे भी करके flux change करो. Either you are increasing the flux or you are decreasing the flux by increasing the magnetic field, by increasing the area, or by rotating that loop. Here we are increasing the magnetic intensity because you are bringing this magnet closer to the loop. तो मैग्नेट के पास हम लूप को ले जा रहे हैं, तो बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. व्हेन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, फ्लक्स इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. थर्ड केस, इफ यू आर डिक्रीजिंग द फ्लक्स, इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द लूप, अगर उस मैग्नेट को मैं दूर ले जाता हूं, now the third case, if I am bringing that magnet away from the loop, यहाँ पे हमारा लूप है, bulb is connected with that loop. Initially this magnet is closer, north and south, so more and more number of lines are passing through this loop. बहुत ज़्यादा इसमें से फ्लक्स जा रहा है. But now I am bringing this magnet away from the loop. इस लूप से दूर ले जा रहे हैं उस मैग्नेट. तो जब ये दूर ले जाएंगे
तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स डिक्रीजेस, ठीक है। सो व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द लूप, इन दैट केस आल्सो फ्लक्स डिक्रीजेस, मतलब फ्लक्स चेंज तो हो रहा है ना, हमको तो चेंज ही चाहिए था हमको, ऐसा नहीं फ्लक्स इंक्रीज ही होना चाहिए, फ्लक्स इवन इफ दैट फ्लक्स डिक्रीजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो ये बल्ब फिर से ग्लो करेगा, मतलब चेंज इज रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक है कुछ भी हो, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यू जस्ट हैव टू चेंज द फ्लक्स, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग फ्लक्स, EMF is induced due to decrease in flux, मतलब यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हुआ, वो जो मैग्नेट है मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूँ तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, व्हेन फ्लक्स डिक्रीजेस देन EMF is induced, मतलब in both the cases either we are increasing the flux or decreasing the flux and EMF and electricity is created। ये हमारा फैराडेज लॉ है कि whenever there is a change in Faraday's first law, Faraday's first law, according to Faraday's first law, whenever there is a change in magnetic flux, अगर हम magnetic flux को change कर रहे हैं, somehow you can change by changing the magnetic field, by changing the area or by changing the angle, कैसे भी करके अपने को बस change करना है, either you are increasing the magnetic flux or you are decreasing the magnetic flux। So according to Faraday's first law, whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux across a closed loop, an EMF is induced। So whenever there is a change in magnetic flux across a closed loop, अगर एक closed loop के क्रॉस हम magnetic flux को change करते हैं, कैसे change कर रहे हैं हमारी अपनी प्रॉब्लम है, by changing the magnetic field, by changing the area or by changing the angle we can change the flux। So somehow you have to change the flux, flux change होना चाहिए, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, चाहे कितना भी हाई फ्लक्स हो, कितना भी हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड हो, इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट देन नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो वी हैव टू चेंज द फ्लक्स, कैसे भी करके, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन चेंज द फ्लक्स, बाय चेंजिंग द एरिया वी कैन चेंज द फ्लक्स और बाय चेंजिंग द एंगल। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, कैसे भी अगर फ्लक्स कैसे भी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज second law। So according to Faraday's second law, EMF, that EMF की value, EMF induced is equal to d phi by dt। First law is the situation in which case, in which situation EMF is induced। Second law is what, EMF is equal to d phi by dt, that rate of change, अब जो उसका मैग्नीट्यूड आता है, फर्स्ट में तो उन्होंने बताया कि किस सिचुएशन में EMF आएगा, सेकंड में एग्जैक्टली कितना EMF आएगा, तो EMF is equal to d phi by dt। तो induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux। Induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux। तो जो हमारा EMF इंड्यूस्ड होता है, induced EMF across a loop is equal to rate of change of its magnetic flux। जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करेंगे, अगर इसका रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा है, मैग्नेट को एकदम फास्ट से ले आ रहे हैं उस कॉइल की तरफ, अगर मैग्नेट बहुत फास्ट आ रहा है तो रेट ऑफ चेंज भी ज्यादा होगा, तो मोर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। सेम मैग्नेट को इफ यू आर ब्रिंगिंग स्लोली, उस मैग्नेट को हम धीरे धीरे उस कॉइल की तरफ ले आ रहे हैं, तो इफ यू आर ब्रिंगिंग इट स्लोली, जो रेट ऑफ चेंज तो हो रहा है, मैग्नेट एकदम फास्ट ले आएंगे तो भी चेंज होगा, मैग्नेट को स्लो ले जाएंगे तो भी चेंज होगा, बट अगर वो एकदम फास्ट आता है तो जो रेट ऑफ चेंज है वो ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है ईएमएफ। तो अगर रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट है तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर स्लो है तो लो ईएमएफ इज इंड्यूस, बट चेंज होना चाहिए। अब चेंज में भी हम फास्ट चेंज कर सकते हैं, स्लो चेंज कर सकते हैं, अगर फास्ट चेंज कर रहे हैं तो मोर ईएमएफ इज इंड्यूस, स्लो चेंज कर रहे हैं तो लेस ईएमएफ इज इंड्यूस, मतलब थोड़ा ईएमएफ आएगा। और अगर चेंज ही नहीं कर रहे हैं, इफ दिस मैग्नेट इज स्टेशनरी, जो मैग्नेट को ले जाना था कॉइल की तरफ वो जा ही नहीं रहा, रुका हुआ है, तो फील्ड जनरेट कर देगा, उस कॉइल के क्रॉस फील्ड होगा, फ्लक्स होगा, बट ईएमएफ नहीं आएगा। ईएमएफ के लिए फ्लक्स होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स में चेंज जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत फास्ट मैग्नेट को ले जाओ या कहीं मैग्नेट को हम रोटेट कर रहे हैं, अगर हम स्लोली रोटेट करेंगे तो ईएमएफ कम आएगा, बट इफ यू आर रोटेटिंग इट विद वेरी हाई स्पीड, अगर हम हाई रोटेशनल स्पीड से उसको घुमा रहे हैं, सो मोर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड।
So the magnitude of that EMF is what? Rate of change of magnetic flux. फास्ट मैग्नेट को ले जाओगे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा. सेम मैग्नेट वही है, लेकिन अगर वो स्लोली जा रहा है तो थोड़ा ईएमएफ इंड्यूस करेगा. वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, so more EMF, high EMF is induced. So magnitude of the induced EMF depends on its rate of change. चेंज से EMF आ जाता है, चेंज नहीं होगा तो EMF नहीं आएगा, चेंज है तो EMF आएगा, बट वो EMF का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज. बहुत फास्ट अगर घुमा रहे हो मैग्नेट को, बहुत फास्ट हाई रेट से चेंज करने हैं मैग्नेटिक फील्ड को, पर एकदम फास्ट उसको घुमा रहे हो तो हाई EMF इज इंड्यूस्ड. स्लोली घूम रहा है तो लो EMF इज इंड्यूस्ड. या इफ यू आर ब्रिंगिंग दैट मैग्नेट क्लोजर टू द लूप, बहुत हाई स्पीड से उस मैग्नेट को ले आए तो हाई EMF इंड्यूस करेगा. एकदम स्लोली आ रहा है मैग्नेट तो EMF इंड्यूस्ड लो करेगा. बट अगर मैग्नेट मूव कर रहा है, मतलब somehow if you are changing the magnetic flux and EMF is induced, कैसे भी करके हमको चेंज करना है, चेंज कर देंगे EMF आ जाएगा. अब EMF की जो वैल्यू बढ़ानी है तो चेंज बहुत हाई रेट से करना होगा. अगर एकदम फास्ट घुमा रहे हैं मैग्नेट को तो हाई EMF इज इंड्यूस्ड, स्लोली रोटेट कर रहा है तो लो EMF इज इंड्यूस्ड. तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है उसके रेट ऑफ चेंज पे, और चेंज जरूरी है. आइदर वी आर इंक्रीजिंग द फ्लक्स, अब ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का कि फ्लक्स इंक्रीज ही करना चाहिए. Even if you are decreasing the flux, मतलब you just have to change the flux. Either you are increasing the flux or decreasing the flux. In both the cases, EMF is induced. हाँ, change is required. Either you are increasing the flux or decreasing the flux. Okay, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस. नहीं, सपोज यू आर ब्रिंगिंग दैट मैग्नेट क्लोजर टू, हम अगर उसको पास में ले जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो चेंज मेंटेन है ना. और अगर उसको घुमा रहे हो तो जिस मशीन से हम उसको रोटेट करते हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको घुमाते जाएगा तो EMF. हाँ, अगर हम मैग्नेट को एक्सेलरेट कर देंगे तो EMF की वैल्यू भी बदलती जाएगी. सपोज इनिशियली वो मैग्नेट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, इफ यू आर ब्रिंगिंग दैट मैग्नेट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगा तो एक कांस्टेंट EMF आएगा. लेकिन अगर वो मैग्नेट एक्सेलरेटेड होगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी स्टार्टिंग में रेट ऑफ, बिकॉज दैट मैग्नेट इज मूविंग तो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है. लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में स्लो वेलोसिटी से जा रहा है तो कम चेंज होगा. बाद में अगर वो एक्सेलरेट होकर फास्ट हो गया तो रेट ऑफ चेंज भी बढ़ जाएगा, मतलब EMF की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. तो अगर मैग्नेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा तो EMF भी कांस्टेंट रहेगा. अगर मैग्नेट एक्सेलरेट हो रहा है, हाई स्पीड हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, तो EMF की वैल्यू भी इंक्रीज करती है. अब देखो इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं. सपोज हमारा फर्स्ट, यहाँ पे हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. उसके अंदर एक फ्रेम था. दैट फ्रेम इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है 10 टेस्ला. इस फ्रेम के साइज को मैंने छोटा कर दिया. पहले इसका एरिया था A1 10 मीटर स्क्वायर, उससे चेंज करके A2 कर दिया 2 मीटर स्क्वायर, और ये हुआ हमारा 2 सेकेंड में. मतलब देयर इज अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर. इट्स एरिया चेंज टू फ्रॉम 10 मीटर स्क्वायर टू 2 मीटर स्क्वायर. इसका जो एरिया हमने चेंज कर 10 मीटर स्क्वायर टू 2 मीटर स्क्वायर कर दिया. इट्स एरिया चेंज. मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं चेंज हुई, एरिया चेंज हुआ इन 2 सेकेंड. सो फाइंड द EMF इंड्यूस्ड. तो आप वही सेम EMF इज इक्वल टू, बिकॉज एरिया इज वेरिएबल, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो EMF क्या होता है d phi by dt. मैग्नेटिक फील्ड को मैंने साइड कर दिया dA by dt, द क्वांटिटी व्हिच इज वेरिएबल. सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एरिया इज वेरिएबल, तो dA by dt इज व्हाट चेंज इन एरिया डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. तो EMF कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया इज व्हाट A2 minus A1, या A1 minus A2 कर दो डिवाइड बाय डेल्टा T. हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव, मतलब चेंज को पॉजिटिव लेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10, एरिया कितने से चेंज हुआ, दैट इज 10 minus 2 डिवाइड बाय टाइम. इसको कितना टाइम लग गया 2 सेकेंड. तो व्हाट EMF इज इंड्यूस्ड 5 into 8, दैट इज 40 वोल्ट. तो इन दिस केस एरिया इज वेरिएबल, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो जो वेरिएबल था उसी को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया. सेकेंड क्वेश्चन, अगर सपोज कर मैग्नेटिक फील्ड हमारा एरिया कांस्टेंट है,
एरिया मैंने कांस्टेंट लिया बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंजेस, अब फील्ड इंटेंसिटी बदल गया। इनिशियली B1 इज 2, B2 इज 8 और ये टाइम चेंज होने में टाइम लिया 0.5 सेकेंड का, ठीक है। नाउ इन दिस केस फाइंड द ईएमएफ एंड इट्स एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, दोनों जगह एरिया में चेंज ही नहीं आया, एरिया इज कांस्टेंट। सो व्हेन एरिया इज कांस्टेंट नाउ ईएमएफ इज इक्वल टू, अब एरिया को साइड कर दो, dB by dt, द क्वांटिटी व्हिच इज वेरिएबल, बिकॉज़ एरिया इज कांस्टेंट, उसको मैंने साइड कर दिया dB by dt। तो एरिया कितना है 10 dB by dt, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ 8 - 2, बिकॉज़ पहले 2 था बाद में 8 हो गया, डिवाइड बाय टाइम इज व्हाट 0.5। So I can simplify 10 into 6 divided by 0.5, 60 into 120 volt. So the EMF which is induced here is 120 volt. तो फर्स्ट केस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल लिया, सेकंड केस में मैंने एरिया वेरिएबल लिया। सॉरी फर्स्ट केस में एरिया वेरिएबल था, सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड। इफ सपोज एंगल इज वेरिएबल, थर्ड अगर हमारा एक फ्लक्स की वैल्यू दिया है, फ्लक्स इज इक्वल टू 10 sin 2 pi t, दिस वे एक्सप्रेशन दिया है फ्लक्स का, फ्लक्स हमारा है 10 sin 2 pi t, फाइंड ईएमएफ, अपने को ईएमएफ फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे cos ओमेगा t के फॉर्म में दिया हुआ है 10 sin 2 pi t एंड दिस कॉइल इज रोटेटिंग। तो अब ईएमएफ यहाँ पे मैग्नेटिक एरिया कुछ भी यहाँ ये कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट d phi by dt, जस्ट डिफरेंशिएट दिस। सो 10 कांस्टेंट d dt ऑफ sin 2 pi t, तो ईएमएफ इज इक्वल टू d dt ऑफ sin 2 pi t, sin 2 pi t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10 into 2 pi cos 2 pi t, now put the value of t is 4 second, so induced EMF is what 20 pi cos 4 pi and cos 4 pi is 1, so what EMF is induced 20 pi। तो यहाँ पे देखो एंगल, मतलब जैसे एंगल इज वेरिएबल, ये तो हमारा चेंज हो ही नहीं रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन या ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस कॉइल। यहाँ पे अगर ये रोटेट करता है साइन के अकॉर्डिंग उसका फ्लक्स चेंज हुआ, तो जस्ट डिफरेंशिएट दिस। तो in the first case area is variable, in the second case magnetic field is variable, in the third case angle is variable। फोर्थ अगर सपोज करो फाई का एक्सप्रेशन ऐसा दिया है 2t square plus 4t and you have to find EMF, find the EMF at t is equal to 2 second पे। यहाँ पे जो फाई का एक्सप्रेशन है 2t square plus 4t, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया क्या है, एंगल क्या है, बट इट इज गिवन, एक टाइम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो just differentiate this, now you'll get the EMF। तो EMF is equal to d phi by dt, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4t plus 4। now put the value of EMF is equal to 4 into time is given 2 plus 4, so 8 plus 4 that is 12 volt। तो 3 केस 4 केस, फर्स्ट केस में व्हेन एरिया इज वेरिएबल, सेकंड केस में व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, थर्ड केस में अगर एंगल वेरिएबल है, फोर्थ केस में कुछ मालूम नहीं चला क्या वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंगल कुछ में वेरी करा, वो टाइम के टर्म में दिया हुआ है। तो अगर टाइम के टर्म में है तो ये क्लियर है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, इट इज वेरिएबल। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, बस उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस यू विल गेट 4t plus 4, आई पुट द वैल्यू ऑफ t, सो 4 into 2 plus 4 that is 12 volt। ओके नेक्स्ट, इफ सपोज कर बोथ द टर्म्स आर वेरिएबल, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों वेरिएबल है। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर गया, देयर इज अ लूप, बोथ द टर्म्स आर वेरिएबल, b1 is equal to 2, b2 is equal to 4, a1 is equal to 10, a2 is equal to 20 and it took time of 1 second। ये कन्वर्ट हो, मतलब ये चेंज होने में 1 सेकंड का टाइम लगा। तो हियर इज एरिया इज वेरिएबल, मतलब एरिया भी चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ, बोथ द क्वांटिटीज आर वेरिएबल, और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड। तो अब क्या करेंगे हम, EMF इज अगेन, EMF इज इक्वल टू
d5 by dt. So that d5 by dt, both the quantities are variable. That is phi 2 minus phi 1 divided by delta t. Now phi 2. Phi 2 is what? b2 a2 minus b1 a1 divided by b2 a2 minus b1 a1 divided by delta t. Yeah, EMF is equal to b2 a2 20 into 4, that is 80, minus b1 a1 10 into 2 divided by time delta t. Delta t is what? 1 second. So 80 minus 20 divided by 1. So EMF is equal to 60 volt. So यहाँ पे दोनों ही चेंज हो रहे थे. मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, एरिया इज वेरिएबल. तो मैंने phi 2 minus phi 1 बिकॉज बोथ द टर्म्स आर वेरिएबल, तो कुछ कांस्टेंट मैंने नहीं निकाला. phi 2 minus phi 1 डिवाइड बाय डेल्टा t. दैट इज phi 2 इज व्हाट? b2 a2 minus b1 a1. एंगल तो जीरो ही है दोनों में, बिकॉज यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग, आई एम नॉट टेकिंग cos omega t because that is zero. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम है. हियर आल्सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम है. तो b2 a2 minus b1 a1 डिवाइड बाय डेल्टा t. b2 a2 सेकंड केस में, so that 4 into 20 minus 2 into 10 डिवाइड बाय टाइम. टाइम कितना लग रहा है उसको? 1 सेकंड. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से. ओके, अब सपोज करो अगर हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, P is equal to 4 टेस्ला, that magnetic field is of 4 टेस्ला, and it's हमारा इनिशियल है और बाद में वो टर्न हो गया. दिस इज व्हाट एरिया एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज मेकिंग 60 डिग्री हियर. मतलब इनिशियली इट वाज मेकिंग 0 डिग्री. पहले मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में 0 डिग्री है. इसका एरिया दिया है 10 मीटर स्क्वायर. एंड एंगल चेंजेस, मतलब इसको रोटेट किया. This angle changes from 0 to 60 in 2 seconds. So find the EMF induced. तो यहाँ पे एंगल वेरिएबल है, तो EMF क्या होगा? phi 2 minus phi 1 डिवाइड बाय डेल्टा t. phi 2 कितना हो जाएगा? ba cos 60 minus ba cos 0 डिवाइड बाय टाइम इज 2 सेकेंड. हम मॉड में ले लेंगे हम उसको, या हमारा ba cos 60 कितना होता है? हाफ. तो ba by 2 minus ba डिवाइड बाय 2, दैट इज माइनस ba by 4. b की वैल्यू कितनी है? 4 और एरिया कितना है? 10. तो 40 by 4 दैट इज 10 वोल्ट. सो द EMF induced in this case is 10 volt. हाँ वो माइनस साइन आ जाएगा, तो वोल्टेज हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव वो उसका स्ट्रेंथ सेम रहेगा.